रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से मुझे जस्ट एक बार कंफर्म करना। स्टार्ट है ना? ओके ओके सर। अच्छा, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। टेक्निकल एनालिसिस में आज हम लोग ना स्टॉक मार्केट को समझने के लिए कंटिन्यूएशन रखेंगे कल का क्लास का। यस्टरडे जो हुआ था उसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक बार मार्केट को 2 सेकंड के लिए विजिट कर लेते हैं। मार्केट नहीं तो पूरा मान जाएगा। अच्छा, एक सेकंड, मार्केट ओपन करना मुमकिन है। एक सेकंड सर। आज मार्केट मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा स्लो है ना? थोड़ा स्लो है बिकॉज एशियन मार्केट फॉल किया है। यूएस ट्रेजरी में वापस यील्डिंग ग्रो किया है। यूएस ट्रेजरी यील्डिंग ग्रो करता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में ऑटोमेटिकली थोड़ा स्लो पड़ जाता है। कल भी नेट बायर था इसलिए मार्केट गिरा नहीं, लेकिन मोस्ट मैंने मेन रीजन से एशियन मार्केट फॉल होना, स्पेशली चाइना, क्योंकि चाइना का एक रिजल्ट आने वाला है इकोनॉमी का, तो उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज है। जापान में एक अच्छा चीज हुआ है। जापान में उन लोगों का कार प्रोडक्शन तो काफी अच्छा होता है, तो उसमें 1% ग्रोथ हुआ काफी दिन बाद। जापान स्लो हो गया है, इसका मार्केट सैचुरेशन हो चुका है, लेकिन जापान बहुत दिन बाद अपना मार्केट में एक वापस रीगेन लाया। लेकिन पूरा का पूरा एशियन मार्केट कल गिरा है और उसके चलते मार्केट आज थोड़ा सा नेगेटिव खाएगा, और मेनली एशियन यूएस मार्केट। ইউএসএর ফ্লাকচুয়েশনের টিপিক্যাল তো হবে এখন ইন্ডিয়াতে খালি ভালো ভালো করে দেখালে মার্কেটিং ভিতরে কিছু নেই। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা এরকম না, ভেতরে কিছু নেই যদি এরকমই থাকতো, একদম কিছু না থাকলে না মার্কেট কখনোই সেটাকে এ করবে না। পাবলিক এত বোকা নয় কি কিছুটা ইমোশনস নিশ্চয়ই কাজ করে, কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ইমোশন না। ইন্ডিয়ান মার্কেটে রিটেল পার্টিসিপেন্টস কত জানে, কজনের নলেজ আছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ইন্ডিয়ান মার্কেটে বিজনেসম্যানদের, নর্মাল লোকেদের নলেজ কত? এরা মার্কেট বোঝে কি, ফাইন্যান্সের কি নলেজ আছে? ওটাই ব্যাপারটা হচ্ছে এখন ইন্ডিয়ান মার্কেট স্ট্রং কিন্তু একটু বেশি ন্যারেটিভ চলছে, বেশি স্টোরি। হ্যাঁ, একটু বেশি স্টোরি চলছে বিকজ স্টোরির দরকার নেই। স্টোরির দরকার নেই না, স্টোরির দরকার আছে, প্রমোশনসেরও দরকার আছে, এটা না। তুই যদি, তোর যদি প্রচার না হয় তো কি তোর উপরে ইনভেস্টমেন্টটাই কে করবে কি? এটাও তো বুঝতে হবে না। স্টোরির দরকার নেই না। ওটা গভর্নমেন্টের পাশে দিয়ে ঠিক আছে, এফপিআই আনার জন্য, এফআইআই আনার জন্য রিটেল ইনভেস্টরদের অত স্টোরি দরকার নেই। ওটা রিটেল ইনভেস্টার্স অ্যাকচুয়ালি একটা মানে সাস্টেনেবল গ্রোথ করতে পারলে ভালো, সেটা না, নো ডাউট। কারণ বটম অফ দ্য পিরামিড আমাদের এখন পুরো মার্কেট যা দেখায়, মার্কেট সেটাকে নিজের মতো করেই করে নেয়, ঠিক আছে। এবারে আমাদেরকে এটা মানিয়েই চলতে হবে। এইটাতে যদি আমরা কোশ্চেন রেজ করতে চাই তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে। কেন এরকম হচ্ছে, এরকম হওয়া উচিত নয়, হ্যাঁ, এত যদি কেউ লজিক খুঁজতে যায় ব্যাস গেল, পুরো গল্প হয়ে যাবে। ওদের ইউএসএ ছাড়িয়ে তাদের ইউএসএ ছাড়িয়ে দেবো, তাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম আমাদের 40 টাকা দিয়ে গেছে। ও তো দেখ ভাই, ওদের 30 কোটি পপুলেশন, আমাদের 140 কোটি পপুলেশন, ওটাই ঠিক আছে। ওদের সাইজ, আমাদের উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা ওদের ইউএস এর জনসংখ্যা ইকুয়াল, তো এইভাবে কম্পারিজন করাটা ঠিক না। কিন্তু হ্যাঁ, আমাদের ইকোনমি ডেভেলপ করলে পার ক্যাপিটা ইনকামও বাড়বে, আর অটোমেটিক্যালি গভর্নমেন্টের একটা স্ট্রং হোল্ড হবে। ঠিক আছে, একটু মোদিজির জন্য একটু ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপে একটা মার্কেটিং আমি তো দিতেই হবে, অনেক টাইম, অনেক টাইম লাগবে। আমাদের তো জার্মানিকে ক্রস করতে হবে, কারণ জার্মানি और चाइना में तो अनेक डिफरेंस। देखो सर, लोगों को क्रॉस करना मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है कि अपना नीड को फुलफिल करना। ठीक है, क्रॉस हो जाए करते करते, ठीक है। तुम हमेशा अगर सोचोगे कि मुझे इसको क्रॉस करके निकलना है, उसको क्रॉस करके निकलना है, ये ऑब्जेक्टिव आई डोंट थिंक कि इतना भी पर्सपेक्टिव है। मुझे ये देखना है कि मेरा जो फुलफिलमेंट है उसको फुलफिल करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम किसी ना किसी को क्रॉस करके निकलो। ऐसा देखोगे तो फिर कोई ना कोई तुमसे आगे रहेगा ही। अगर तुम कंपटीशन में उतरोगे तो कोई ना कोई तुम्हारे आगे है, कोई ना कोई तुम्हारे पीछे है, तुम किसको किसको निकालोगे? और चाइना के साथ हमारा गैप देखो, ওটাই তো বলছি, চাইনার সাথে ह्यूज गैप। মানে লোকে যেটা অ্যাসিউম করতে ইন্ডিয়া 7-8% গ্রো করবে, এটা চাইনা কি গ্রো করবে না? মানে अगर वो 7% ना करे, कम से कम 3%, 3 तो करेगा। কারণ ও যদি গ্রো না করে তাহলে ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট করবে কাদের সাথে? Obvious। আর লোকে বলে $2 হয়ে যাবে,
ইন্ডিয়াতে মানে অ্যাকচুয়ালি বড় বড় মল মানে ইন্ডিয়াতে অ্যাসপিরেশনাল বুম করছে, লাক্সারি সেগমেন্ট বুম করছে, বড় পিরামিডে কোনো বাইক দেখা যায়। তো ওখানে কারা যায় যারা আইটি সেক্টরে জব করে। তো যদি ডলারাইজেশন হয় তাহলে স্যালারি অ্যাকচুয়ালি আইটি সেক্টর হাইক করবে। হ্যাঁ, কারণ আইটি সেক্টর অফার করে ওই রুপি ডিফারেন্স, হ্যাঁ, difference। যদি ওই ডিফারেন্স শেষ হয়ে যায় তাহলে আর্থিক বেসিক্যালি এক্সপোর্টের জন্য হয় না, আইটি এক্সপোর্টের জন্য হয় না। আমরা যদি বেনিফিটই না পাই এক্সপোর্টার, তাহলে কারা যাবে মানে বড় বড় মল কেএফসি তে, কোয়েস মল, সাউথ সিটি মল, আমাদের মধ্যে সেখানে যারা 10 কোটি টাকা 20,000 স্যালারি। অবভিয়াসলি ওটা দেখ একটা মানে বেসিক্যালি একটা মার্কেটের স্ট্রাকচার, ওটা একটা কিছু লোক বলে কথাগুলো অ্যানালিস্ট, দেখুন হতে অনেক টাইম লাগবে, যে কোনো জিনিস হতে অনেক টাইম লাগবে, অত সহজ হবে ফুল ডমিনেন্স পেতে টেক টাইম। একটা সিঙ্গেল গভর্নমেন্ট থাকলে লাগাতার এখন 10-15 বছর থাকতে হবে, তবে হবে। ব্যাপারটা अच्छा देख चल सर चल, तो मूविंग एवरेज कल हम लोग स्टार्ट किया था ना, तो मूविंग एवरेज में कल हम लोगों ने ये देख लिया था सर सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, एज वेल एज ये भी देख लिया था कि कैलकुलेशन कैसे होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में डिफरेंस क्या है ये भी समझ गए थे। एक्सपोनेंशियल बेसिकली लेटेस्ट डेटा पॉइंट को ज्यादा फोकस करते हैं, मैथमेटिकल पार्ट में हम लोग और ज्यादा बात नहीं करेंगे उसमें, मतलब क्यों सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे होता है, उसके एप्लीकेशन पार्ट समझ लेंगे इतना काफी है सर। तो ऑलरेडी ये सब डिस्कशन हो गया, लेकिन सर आज ना मैं आपको मूविंग एवरेज का एप्लीकेशंस के बारे में बात करूंगा, जो भी मैं कल किया था। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम, ठीक है, जिसमें ये आपको थोड़ा सा स्पेशल हेल्प करेगा ट्रेडिंग पर्पस में, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर सिस्टम। तो ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर सिस्टम देखने के बाद आप लोग ये आइडेंटिफाई कर पाओगे, बेटर आइडेंटिफिकेशन पड़ेगा आपका नॉर्मल एवरेज से, कि आपको ना एक स्पेशल बाइंग जोन एज वेल एज स्पेशल सेलिंग जोन का आइडिया मिल जाएगा। तो दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर सिस्टम। नाउ इसमें ना एक्चुअली अलग अलग ये में यूज होता है, ये में इन द सेंस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पहले ना इसको सिंपल समझते हैं, जैसे फाइनेंस में एक लैंग्वेज बार बार यूज होता है प्लेन वैनिला। प्लेन वैनिला माने वैनिला आइसक्रीम नहीं देगा, सिंगल इंडिकेटर। प्लेन वैनिला माने किसी भी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो प्लेन वैनिला, जैसे बॉन्ड में भी बोलते हैं प्लेन वैनिला बॉन्ड, सिमिलरली यहाँ पे बोल रहे प्लेन वैनिला मूविंग एवरेज सिस्टम। प्लेन वैनिला माने किसी भी चीज का सिंपलेस्ट फॉर्मेशंस को बोला जाता है प्लेन वैनिला, ये अमेरिकन वर्ल्ड में यूज होता है। और क्योंकि ये सब पढ़ाई थोड़ा सा उन्हीं लोगों से आजकल हम लोग प्रभावित होकर पढ़ते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन, तो ऑटोमेटिकली ये सब लैंग्वेज थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, नहीं तो न्यूज़पेपर में कहीं पर प्लेन वैनिला दे देगा, बच्चा बोलेगा पापा मेरे को आइसक्रीम खिलाना है, प्लेन वैनिला दिख रहा है। इंडियन मार्केट में तो वैनिला हम लोग आइसक्रीम से ही कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन फाइनेंशियल, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देगा ये हमेशा, आप लोग किसी भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे उसमें ही ऑटोमेटिकली मैगजीन में आपको दिखेगा। तो फिर बंदा बोलेगा भाई प्लेन वैनिला ये क्या चीज है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को यूएस मार्केट में, वेस्टर्न मार्केट में प्लेन वैनिला बोलते हैं। सो एज इट इज एविडेंट नाउ द प्रॉब्लम विद द प्लेन वैनिला मूविंग एवरेज सिस्टम, जो हम लोग अभी कल ही पढ़े यस्टरडे, इज जनरेट फॉर टू मेनी ट्रेडिंग सिग्नल्स इन अ साइडवेज मार्केट। प्रॉब्लम क्या था कि वहां पर टू मेनी सिग्नल्स आ रहा था ना, कि सर यहाँ पर भी बाइंग जोन बन रहा है, मैंने जब जब ये में थोड़ा सा हायर है करंट मार्केट प्राइस से, ये में जब जब थोड़ा सा हाइट है करंट मार्केट प्राइस से, ये हमें क्या बताते हैं कि मार्केट बुलिश है ना। लेकिन थोड़ा सा हाई रहने से ही अगर लोगों को लगे कि हमें यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए, तो हम लोग ये भी कल बातचीत की है कि ये आपको कभी कभी थोड़ा मिसगाइड भी करता है। मिसगाइड माने मूविंग एवरेज ट्रेंड है भाई, साइडवेज मार्केट। अब मुश्किल, ये भी तो मुश्किल है ना सर, मार्केट साइडवेज चलते तो ट्रेंड पकड़ लेता है। अब कब ट्रेंड पकड़ेगा ये समझना तो मुश्किल है, वो तो बस वो टाइमिंग के लिए वेट करना है। मैंने बेसिकली बॉलर बॉल कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, अच्छा बॉल डाले जा रहा है, लेकिन बैट्समैन कब आगे निकल के उसको मार देगा ये बॉलर को भी पता नहीं चलता। कभी कभी देखना जब बैट्समैन बैटिंग करता है, अगर अच्छा बैट्समैन है, बॉलर को अटैक करना जानता है, तो देखना बॉलर को फर्स्ट बॉल में ही मारेगा। फर्स्ट बॉल में इसलिए मारता है क्योंकि बॉलर अपना प्लान करने से पहले ही वो उसको अटैक करता है। मार्केट भी ना आपको सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम में डालता है, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, अचानक से देखोगे ट्रेंड क्रिएट हो गया। अब इसके लिए रेडी रहना है, दैट इज द पॉइंट। आप बोलोगे सर कैसे हो गया पता ही नहीं चला,
हाँ, पता कभी कभी चलेगा ही नहीं, लेकिन वो पता कैसे चलेगा उसको थोड़ा और बेहतर इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है। मतलब इसको एक्यूरेटली समझ पाना मुश्किल है बिकॉज ट्रेंड है। इकोनॉमिक्स 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 ऑलवेज ना ट्रेंड को ही बताते हैं सर। इकोनॉमिक्स कभी भी एग्जैक्टनेस नहीं बता सकता। ये बात आप लोग ना गांठ बांध लो। नहीं, मुझे एग्जैक्टली चाहिए, आप भागो एग्जैक्टली के पीछे, देखो कैसे एग्जैक्टली मिल जाता है। एग्जैक्टली कभी नहीं मिल सकता। अगर मानो कोई एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा, इसका मतलब इसको पता नहीं है। अरे भाई तुम रघुराम जी राजन को जाके पूछ लो, या फिर अपना करंट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को जाके पूछ लो, देखते हैं वो कितना एग्जैक्ट बताते हैं आपको। हाँ, थोड़ा बेहतर ओवरव्यू दे सकता है कि ऐसा ऐसा होने से ऐसा ऐसा होगा, बट एग्जैक्ट कहना उनके लिए भी मुश्किल। सो पॉइंट ये नहीं है कि हमें एग्जैक्ट चाहिए, पर पॉइंट ये है कि हमें प्रॉपर ट्रेंड फाइंड आउट करना। तो नॉर्मल प्लेन वैनिला में ये जो साइडवेज मूवमेंट है ना, जब आपको बार बार लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस से ईएमए अच्छा पोजीशंस पे है, मतलब हायर पोजीशंस पे है, तो मार्केट बुल हो सकता है। कभी कभी बुल हुआ भी है, लेकिन देखो मार्केट एक्चुअल में वापस नीचे आ गए। तो ये ना आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या कर रहा है, कभी लॉस कभी हल्का प्रॉफिट, कभी लॉस कभी हल्का प्रॉफिट। लेकिन क्रॉसओवर ये में आपको ये साइडवेज मार्केट मूवमेंट में आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। मैंने ये जो बार बार नॉर्मल नॉर्मल मूविंग एवरेज क्या सजेस्ट करता है कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको कभी ना कभी मौका मिलेगा, एक फुल टॉस मिल जाएगा और उसमें आप छक्का लगा देना। ये नॉर्मल मूविंग एवरेज सजेस्ट करता है। देखो सर, कल का बातचीत आज की बातचीत में थोड़ा फर्क है। कल हम लोग बात कर रहे थे कि नहीं, मूविंग एवरेज अगर समझ गए हैं तो उसमें ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है, और फिर हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कल हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखे थे अंबुजा सीमेंट्स में। ये देखिए यहाँ पर था ना कि लगातार 2-3 साइडवेज, हल्का हल्का साइडवेज था, उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ट्राई करते गए ट्राई करते गए ट्राई करते गए, लेकिन सबसे बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पर मिला। तो मार्केट भी आपको इसी तरह का सजेशन देता है मूविंग एवरेज पे कि आप ट्राई करते रहो मूविंग एवरेज पे, 2 बार 3 बार थोड़ा सा हल्का लॉस हल्का प्रॉफिट, हल्का लॉस हल्का प्रॉफिट होगा, पर एक बड़ा प्रॉफिट आपका सारा लॉस को, छोटा छोटा लॉस को कवर अप कर देगा। लेकिन किंतु परंतु देयर इज अ कैच। कैच क्या है? कि कैच है कि ये जो क्रॉस ओवर ईएमए सिस्टम है, ये आपको ना ये छोटा छोटा जो सिग्नल है जो आपको मिसलीड कर सकता है, इसको एलिमिनेट करने का मौका देता है। दैट इज द थीम। ओके, तो अब चलो इसको समझते हैं। तो for 2 minute trading signals in a sideways market, a moving average crossover system is an improvisation over the plain vanilla moving average. It helps the trader to take fewer trades in a sideways. साइडवेज मार्केट में आप इतने, इससे पहले क्या कर रहे थे, ज्यादा ट्रेड ले रहे थे, इस बार आप ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत मे बी एक दो। तो इंस्टेड ऑफ यूजुअल सिग्नल मूविंग एवरेज इन एमए क्रॉसओवर, द ट्रेडर कंबाइन 2 मूविंग एवरेज। इसमें आपको क्या करना है, एक नहीं 2 मूविंग एवरेज लेके चलना है। दिस इज यूजुअली रेफर्ड टू एज स्मूथिंग। ये जो दो करने का मतलब ही है स्मूथिंग करना। और आजकल मार्केट आपको ना सॉफ्टवेयर खुद भी बना के दे देता है, स्मूथिंग आपको ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर देता है, ताकि आप वो जो छोटा छोटा सिग्नल को आप इग्नोर कर पाओ। इसीलिए ना वो देते हैं। कल हम लोग देख रहे थे ना, बार बार स्मूथिंग आ रहा था, बार बार स्मूथिंग आने और बार बार देखना एक ईएमए, एक 9 डे का 50 दिन का लेगा, तो एक 5 दिन का भी ऑटोमेटिक आ जा रहा है। मैंने बेसिकली जब आप दो दो करके देखोगे तो वो आपको बेटर पोजीशन क्रिएट करके देता है नॉर्मल मूविंग एवरेज से। अब चलो इसको थोड़ा एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आएगा। टिपिकली मार्केट क्या करता है, एक 50 डे का ईएमए लेता है और एक 100 डे का ईएमए लेता है टिपिकली। अच्छा, आप इसको चेंज कर सकते हो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। आप अपने हिसाब से एज पर योर मार्केट ट्रेंड आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। द शॉर्टर मूविंग एवरेज, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, shorter moving average, that is 50 days in this case, is also referred to as the faster moving average. जो शॉर्टर है वो फास्ट मूव करेगा, जो लॉन्गर है वो स्लो मूव करेगा। जैसे बॉम्बे में चलता है ना, आप लोग कभी बॉम्बे अगर गए हो, अगर जाओगे कभी ना, फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन बॉम्बे में एक ही ट्रैक में, लोकल ट्रेन जैसे हमारे यहाँ पर चलता है ना, हमारे यहाँ पर जब एक ट्रेन चलेगा तो दूसरा ट्रेन तो पीछे ही आएगा, सामने से साइड से नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन बॉम्बे में 2 अलग अलग ट्रैक होता है, एक ही जाएगा। मानो कि भाईंदर से या मीरा रोड से कोई ट्रेन जा रहा है बॉम्बे सेंट्रल की तरफ, तो उसी ट्रैक में एक फास्ट मूविंग ट्रेन रहेगा, जैसे मिडिल वाले में फास्ट मूविंग रहेगा, साइड वाले में स्लो मूविंग रहेगा, एट ए टाइम चलता है। बॉम्बे का लोकल ट्रेन का सिस्टम कैसे है? मैंने सीरियसली जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो पता चल गया यार 4 दिन रह जाएगा ना,
एयरपोर्ट में उतरेगा कि यार स्टेशन चल ही नहीं रहा है, मतलब कोई चल ही नहीं रहा है। Bombay is so fast and there are lots of facilities. हमारे बाजार में पड़ा है इधर नहीं हैं? एयरपोर्ट मार्क टू फिर भी इतना ट्रेन के बाद भी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर लाइन में क्या प्रॉब्लम है, लोग ज्यादा है, ट्रेन कम है, इसलिए भीड़ है। वहां पर ट्रेन भी ज्यादा है, लोग भी ज्यादा है, फिर भी भीड़ है। फास्ट में तो उतने ही कर फास्ट में उतने ही कर चढ़ ही नहीं पाओगे। फास्ट जो ट्रेन जाता है ना वो रुकता ही नहीं, वो स्लो करके निकलता है। और नॉर्मली क्या करते हो वहां पर, मानो कि तुम अगर नेक्स्ट स्टेशन में उतरना है ना, तो तुमको कम से कम 3 स्टेशन बैक से तुमको अटेंड लेना है कि मेरे को उतरना है। जैसे मान के तुम्हारे हम लोग का जो लाइन है बागा जी जादवपुर वाला जो लाइन है, उसमें भीड़ होता है। हाँ, शेयर करने के नाम पे नाम पे करता है। हाँ। 1-2 स्टेशन में से होता है, वहां पर हर स्टेशन में से जो भी हो, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग में आया तो मैं बोला आपको। ठीक है, कुछ कुछ तक आ जाता है। तो एक 50 दिन का ईएमआई जो फास्ट मूविंग ट्रेन की तरह है, और 100 डे का एवरेज जो है सर ये स्लो मूविंग ट्रेन की तरह, क्योंकि आप लंबा समय का एवरेज लोगे तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा स्लो चलेगा। is referred to as a slower moving average. Now, point is that the shorter moving average takes a lesser number of data points to calculate the average, and hence it tends to stick closer to the current market price. The shorter moving average current market price के आसपास होता है, and therefore react more quickly. Longer moving average takes more data points to calculate the average, and hence it tends to stay away from the current market price. थोड़ा दूर रहता है current market price. Hence reactions are slower. अब ये एक slow और एक fast balance करता है. That is the point. है ना? जैसे चार्ली मुंगेर एंड वॉरेन बफेट। चलो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एग्जांपल भी दिमाग में चल गया। चार्ली मुंगेर का डेथ हो गया, हाँ देहांत हुआ रिसेंटली, परलोक गमन करके। चार्ली मुंगेर और वॉरेन बफेट में बड़ा डिफरेंस है। दुनिया वॉरेन बफेट को जितना जानता है चार्ली मुंगेर को उतना नहीं, ठीक है, कम जानते हैं। चार्ली, लेकिन दोनों ने ही कंपनी को बनाया। बर्कशायर हैथवे इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टमेंट कंपनी, दुनिया नमन करता है इनको। लेकिन चार्ली मुंगेर एक पेसिमिस्टिक काइंड ऑफ इंसान था, वो हर चीज का नेगेटिविटी ढूंढता था। वॉरेन बफेट हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता था। माने वॉरेन बफेट इज लाइक अ फास्ट ट्रेंड, चार्ली मुंगेर इज लाइक अ स्लो ट्रेंड। अब ये कॉम्बिनेशन ही है जो कंपनी को बनाया। तो ये हमारे रिसर्च हो जाएगा, बाय साइड रिसर्च, सेल साइड रिसर्च। ठीक है, वो नेगेटिव चीजों को मैंने उसको लगता था नहीं नहीं मार्केट खराब जाएगा, नहीं अगर प्रॉब्लम होगा इस तरह का। और चार्ली मुंगेर अपने मतलब ऑटोबायोग्राफी में बार बार बोलता है कि इफ आई फील आई एम a pessimistic and I am okay with it and very happy with my pessimistic attitude. लोग नॉर्मली ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड में खुशी होते हैं, ये पेसिमिस्टिक एटीट्यूड में खुश मतलब दुनिया को बताते हैं, और ये प्रूव भी करके दिखाया। तो ये बड़ा अच्छा एटीट्यूड है। और चार्ली मुंगेर का एक बड़ा अच्छा लाइन उस दिन नितिन कामत ने शेयर किया था जरूरदा का, तो मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था। बोलते हैं कि एक लाइन था, तो नितिन ने उसको टैग किया ट्विटर में, तो उसमें बताया जा रहा है कि लाइफ के बारे में या फिर इन्वेस्टमेंट लाइफ के बारे में एक सिंपल सा थ्योरी ये है कि सबसे पहले तो परसेप्शन बना लो कि लाइफ टफ है कि इजी है। इंडिविजुअली अगर तुम्हें लगता है, ज्यादातर लोग लाइफ को टफ ही मानता है एक सर्टेन एज के बाद, बचपन बीत गया उसके बाद, ठीक है, किसी किसी का तो बचपन भी टफ होता है, वो अलग बात है। लेकिन मानो कि तुम लोग अगर चाइल्डहुड चले जाते हैं, जैसे तुम लोग अब जॉब लाइफ चालू होगा, अब देखो ना जिंदगी का टफनेस पता चलता है। सो जब आप लोग टफनेस को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो पहले क्वेश्चन करो कि क्या जिंदगी टफ है। अगर आंसर यस आएगा, सेकेंड क्वेश्चन आएगा कि क्या ये टफनेस मैं झेल सकता हूँ, क्या मैं हैंडल कर सकता हूँ। अगेन अगर आंसर यस है, इसका मतलब तुम जीत गए। ये मेरा बात नहीं है सर, चार्ली मुंगेर का एक लाइन है, तो इसी से मैं भी आपको बात किया। इस दैट आप इसको आप बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट में देखिए, ये देखिए, ये जो करंट मार्केट है बैंक ऑफ बड़ौदा का बता रहा है 879 इसका शेयर का दाम चल रहा है। इसमें जो ब्लैक वाला लाइन है ये 50 दिन का ईएमए से लिया गया, और जो पिंक लाइन है ये 100 डे का ईएमए से लिया गया। Now question is that 50 दिन का ईएमए मार्केट के ज्यादा पास है 879 के, एंड 100 डे का ईएमए मार्केट से थोड़ा पीछे है क्योंकि दूर में है। ना क्वेश्चन इज दैट अब इसको देख के ट्रेडर क्या करे। वेरी सिंपल थिंग इज, ट्रेडर इसमें क्या करे। तो ट्रेडर को क्या करना चाहिए, रिएक्शन प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। 50 day EMA line is closer to current market and compared to pink 100 day EMA is react slower.
So trader have modified the plain vanilla moving average system with the crossover moving to smoothen out the entry and exit point. The trader gets a fewer signals in the process, but the chances of trade being profitable are quite high. Signal उसको कम मिलेंगे, लेकिन प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा रहे. नॉर्मल में क्या होता है, सिग्नल ज्यादा मिलता है, प्रॉफिट समझ में नहीं है. यहाँ पर क्या होगा, आपको सिग्नल कम होगा लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होगा. कैसे, वो आपको अगला पॉइंट भी समझ में आएगा. देखो, आपको कब बाय करना चाहिए. कहते हैं कि द एंट्री एंड एग्जिट रूल्स ओवर क्रॉसओवर. रूल 1, आप बाय करो. बाय माने फ्रेश लॉन्ग व्हेन द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज टर्न्स ग्रेटर देन द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज. जिस पॉइंट में 50 दिन का ईएमए 50 ईएमए ग्रेटर देन 100 ईएमए से ज्यादा होगा, जिस पॉइंट में क्रॉस कर जाएगा नीचे नहीं 50 ईएमए ज्यादा है ऊपर है और 100 डे का ईएमए नीचे रहेगा. ठीक है, तो जिस पॉइंट में 50 ईएमए इज ग्रेटर देन 100 ईएमए, ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि आप लॉन्ग करो. When short term moving average turns greater than the long term moving average, stay in the trade as long as this condition is satisfied. आप चलते जाओ, माने आप ना स्टॉक छोड़ के मत निकलो जब तक 50 डे ईएमए 100 डे ईएमए से ऊपर रहेगा, तब तक आप उसमें बने रहो, छोड़ना नहीं. आप तब ये क्या हो गया, ये बाई करने के बाद अच्छा জানি এটা বাই করে থাকার জন্য থাকার জন্য, বাই পুরাটা করো ঠিক আছে. করতে গেলে নেক্সট হচ্ছে বাইয়ের জন্য আমাকে একটা সিগন্যাল ওখানে দেবে, আমি সেটা দেখাচ্ছি. एग्जिट कब करना चाहिए, व्हेन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज टर्न्स लेसर देन द लॉन्ग टर्म. माने इस बार क्या होगा, 50 डे ईएमए लेस देन 100 ईएमए, माने नीचे चला जाएगा. 50 डे नीचे आ जाएगा, 100 डे ऊपर चला. ये होता है मार्केट में, ये सब माने वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. मैं आपको अभी दिखाता हूँ. अब इसको अप्लाई करते हैं. अब इसको अप्लाई करते हैं. So let us apply the moving average crossover system to the BPCL example we looked at. For ease of comparison, I have produced a BPCL chart with a single 50 day EMA. ठीक है, ये एक सिंगल EMA है और नीचे देखो यहाँ पर दोनों EMA. ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं. यहाँ पर कंपेयर करते हैं, फिर लाइव मार्केट में जाते हैं. वेट सर, तो ये देखो, ये EMA लाइन है जहाँ पर करंट मार्केट प्राइस से EMA लाइन थोड़ा सा हायर है, तो यहाँ पर आपको एक बाइंग जोन बना रहा है. ठीक है, मूव ऑफ रुपीज 350, देखो रुपीज 350 टू 583. ठीक है, ये 350 चल रहा था यहाँ पर और ये 583 में चला गया. ये 5 मंथ में हुआ था, ये 5 मंथ्स का डेटा है. शायद आपको थोड़ा सा हेजी हो रहा होगा. तो वन पिक ट्रेड गुड एनफ टू गिव यू लार्ज प्रॉफिट, दैट्स ट्रू. लेकिन ये सिंगल 50 ईएमए में ट्रेडर ने दिखा. नोटिस व्हेन मार्केट वेर मूविंग साइडवेज, नाउ पॉइंट इज दैट जिस पॉइंट में मार्केट साइडवेज था, जैसे देखो ये वाला सिचुएशन, ये वाला सिचुएशन, इस पॉइंट में मार्केट पूरा साइडवेज है, कोई ट्रेंड नहीं पकड़ा. आप वेट कर रहे थे कि पता नहीं कब होगा कब होगा, आप लेकिन आपका वेट फुलफिल नहीं हो रहा. सो व्हेन मार्केट वेर मूविंग साइडवेज, मूविंग एवरेज क्या सजेस्ट करता है, एटलीस्ट 3 ट्रेडिंग सिग्नल्स. ठीक है, however the fourth trade was the winner which resulted 67% profit. माने ये देखो सर, यहाँ पर एक सजेशन दिया था, यहाँ पर एक सजेशन दिया था, यहाँ पर एक सजेशन दिया था. ठीक है, तो यहाँ पर एक दिया था, 1 2 3 4 सजेशन के बाद 4th ट्रेड में जाके एक्चुअल में आपका माने काम फुलफिल हो. आप बार बार फेलियर होते. देखो, आपको लगा था यहाँ पर बढ़ेगा बट हुआ नहीं, आपको लग रहा था यहाँ बढ़ेगा इस पॉइंट में, नहीं हुआ. आपको लग रहा था यहाँ होगा, नहीं हुआ. हुआ कहाँ, यहाँ पर थोड़ा और बाद यहाँ पर एक्चुअली. ठीक है, सो 67% प्रॉफिट आपको 4th पॉइंट में जाके पता चला. लेकिन यही बार बार आपको सिग्नल मिल रहा था. देखो, ये सिग्नल जनरेट कर रहा था आपके लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. ये सिग्नल आपको देखो, बार बार सिग्नल जनरेट करना माने बार बार ट्रेडिंग, बार बार पैसा लगना. ठीक है, बार बार ब्रोकरेज घटना. ठीक है, और जिसमें आप लोग हम लोग सब परेशान. तो इसको कम करना है. 4 बार की जगह अगर 2 बार हो जाए अच्छा रहेगा. नाउ कम्स टू द पॉइंट. अब आप इसको अवॉइड कर सकते हो. आप एट ए टाइम शेयर के ऊपर 50 और 100 दोनों लगा. देखो सर, ये जो पॉइंट यहाँ पर एरो किया गया है, 50 डी ईएमए क्रॉस ओवर विथ 100 डी ईएमए, इस टाइम पे मार्केट में आपका दाम चल रहा है 380 के आसपास. देखो तो 360 390 के बीच में है ना, अप्रॉक्स 380. लेकिन ब्लैक लाइन दैट इज 50 का 50 ईएमए थोड़ा सा ऊपर है. जिस पॉइंट में देखो एरो जिस पॉइंट में है, मैं इसको रब करता हूँ, आप एक बार फॉलो कर. ये देखो, ब्लैक लाइन ऊपर है, पिंक लाइन नीचे है.
है ना। इसका मतलब 100 डे मूविंग एवरेज लोअर साइड में है, 50 डे अपर साइड में। लेकिन अगर आप उससे पीछे देखो, ये देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पिंक और ये एक ही साथ चल रहा था, एक ही साथ चल रहा था। पिंक अभी ऊपर है, पिंक ऊपर है मैंने 100 डे ऊपर है, तो 100 डे ऊपर है मैंने बाई तो नहीं करना चाहिए। हाँ, सेल करने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन वो भी प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा तो मत करो। मैं अभी बाई के बारे में बात कर, जब तक 100 डीए में अबव 50 डीए में रहेगा, इट्स नॉट अ बाइंग एरिया। लेकिन जिस पॉइंट में पिंक नीचे चला गया और ब्लैक ऊपर रह गया, माने 50 ज्यादा हो गया, 100 नीचे चला गया, माने बाइंग में क्रिएट करना है, तो ये आपको एक मौका बना देता है ना सर। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। 4 बार जो आपने फॉल्स ट्रेड लिया था एक तरह से, এখানে দুবার হবে। ये जिन्हें टास्क করে ঠিক অ্যাকচুয়ালি দুটো একসাথে তারপরে পিঙ্কটা নিচে নেমে যাবে, কালোটা উপরে চলে যাবে। হ্যাঁ, ঠিক ওই পয়েন্টটাতে আপনাকে বাই করতে হচ্ছে, মানে বেসিক্যালি এখানটাতে একটা মকা আপনি সিগন্যাল দিতে হবে গ্রিন রেড সেটা। এবারে এইটার সাথে সাথে ক্যান্ডেলকে ম্যাচ তো করাতেই হবে, সেটাতে পরে আসছে। আগে আমি ইন্ডিভিজুয়ালিতে এটাকে বুঝি এটা কিভাবে কাজ করে। ক্যান্ডেল স্টিক্স তো আছেই, ক্যান্ডেল স্টিক ওটা তো আছেই, ওটাকে ছাড়া আমি কি করে চলতে পারি? ঠিক আছে, ক্যান্ডেল আছে, ভলিউম আছে, সাপোর্ট আছে, রেজিস্ট্যান্স আছে, ওগুলোকে ইগনোর তো করতে পারি। কিন্তু মুভিং এভারেজ আমাকে একটা অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ, কি মুভিং এভারেজও আমাকে বাইং বা সেলিং এর জন্য মৌকা দেবে এবং বারবার ভুল করার থেকে বাঁচাতে পারে, সিগন্যাল बार-बार भूल करार থেকে আমাকে सेव করে। মানে मैं बारंबार मेरा मानो कि मैं ट्रेड तो ले रहा हूं पर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जितना कमा रहा हूं वो ब्रोकरेज में ही चला जा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ना, तो उसको कम करने का दवाई यही है। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक बार आपको दिखाता हूँ। तो ब्लैक लाइन प्लॉट्स 50 डे मूविंग एवरेज एंड पिंक लाइन प्लॉट्स 100 डे मूविंग एवरेज। As per the crossover rule, the signal to go long originate when 50 day moving average crosses over the 100 day moving। जिस पॉइंट में 50 दिन का मूविंग एवरेज, दैट इज हमारे इस एग्जांपल में ब्लैक लाइन, जिस पॉइंट में 50 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा 100 डे मूविंग एवरेज को, दैट इज दिस पॉइंट क्रॉस करेगा। ठीक है, मैंने नीचे से भी क्रॉस कर सकता है या फिर ऊपर से भी निकल सकता है। मैंने एक साथ दोनों चल रहा था, एक साथ दोनों चल रहा था, ये ब्लैक लाइन इधर से निकल गया, पिंक लाइन ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर मानो ब्लैक लाइन नीचे ही था और नीचे से इस तरह से कट करके 100 डे को क्रॉस करके टच करेगा, ऑब्वियसली टच करेगा, হয় একদম জাস্ট ছুঁয়ে বেরোবে আর না হলে ক্রস করে বেরোবে, বেরোতে তো হবে। যেমন হয় না, দুটো রাস্তা যাচ্ছিল, একটা রাস্তা এরকম হয়ে যাচ্ছে আর একটা রাস্তা তার এদিক থেকে এসে এরকম ভাবে কেটে দিচ্ছে, তো কিছু হতে পারে। তো এখানে ব্যাপারটা কি, দুটো একই সাথে চলছিল, একই সাথে চলতে চলতে ব্লैकটা নিচে নেমে গেছিল, ভালো করে দেখ, मैंने 50 दिन का मूविंग एवरेज नीचे चला गया था, उसके बाद 50 दिन का मूविंग एवरेज इसको यहाँ से कट नहीं किया, और जब इसको कट करके ऊपर चला गया तो ये वाला नीचे नहीं आ गया। कल हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास में 100 ডে বাই আমাদের থেকে যখন 50 দিনের ইএমএ 100 ডে ইএমএ কি ক্রস করবে, সেই সময় আমার বাইং ট্রেড হবে। ক্রস করবে মানে কি, 50 দিনটা উপরে চলে যাবে, 100 দিনটা নিচে নেমে আসবে, মোমেন্টামকে ইন্ডিকেট করছে, মানে দিস ইজ দি মোমেন্টাম। বোঝা গেল ব্যাপারটা? কালকে ইকোনমিক্স ক্লাসে বাচ্চাদেরকে পড়াচ্ছিলাম, সি এর ফাউন্ডেশন বা যারা সি এর ফাউন্ডেশন, তাদের একটা সিমিলার কাইন্ড অফ কনসেপ্ট ছিল, সেম কনসেপ্ট। ওখানে একটা তোরা পড়েছিস বিকমে, আমাদের কত 40 মার্কসের ছিল ঠিক আছে 40 মার্কস থাকবে, কনসেপ্ট পড়েছিস। এভারেজ কস্টের একটা লাইন থাকে বিজনেসে, এই বিজনেসের একটা এভারেজ কস্ট হয় আর বিজনেসের একটা মার্জিনাল কস্ট। তো মার্জিনাল কস্ট থেকে আমি ড্র করছি, মার্জিনাল কস্ট এভারেজ কস্ট কে ঠিক ওর মিনিমাম পয়েন্টে এরকম ভাবে কাট করে, ঠিক আছে। মার্জিন হ্যাঁ একই জিনিস, এইটা দিয়ে এইগুলো দিয়েই হয়, ইকোনমিক্স এর এই বেসিক অ্যাপ্লিকেশন দিয়েই ইওকিউ টিওকিউ সব সলভ করা হয়। আমরা ইকোনমিক্স শিখে দিই কলেজ পাস করার পরে, তখন ইন্টারেস্ট এসে এই সমস্ত কনসেপ্টের মেন জড় হচ্ছে ইকোনমিক্স। আপনি যদি ইকোনমিক্সটাকে বুঝতে পারেন, আপনি যে কোনো সাবজেক্টে ওইটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। কস্টিং এ পড়েছিলাম, সমস্ত কিছু কস্টিং এ ধর, যারা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ক্যালকুলেশন করছে, ইওকিউ ক্যালকুলেশন করছে, তারপরে তো যারা ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট করছে তাদেরকে ফিনান্সিয়াল শেখানো হচ্ছে, ঠিক আছে। এক জিনিস ফিনান্স, কোর ফিনান্স যারা পড়ছে, যখন আমরা ক্লাস করছি তখন কোর ফিনান্সও একই কনসেপ্ট ইউজ করছে, মানে বেসিক্যালি যারা ইকোনমিক্স এর বেস থাকবে না, সে সব জিনিস তো আর 2 ইনটু এ ডিভাইডেড বাই সি হ্যাঁ
এরকমই থাকবে, এটা বিভিন্ন রকম ভাবে লেখা হবে। अच्छा चलो, अच्छा बेसिकली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ ना। चलो अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या था, प्लीज डू नोटिस हाउ द क्रॉसओवर सिस्टम कीप्स द ट्रेडर अवे फ्रॉम 3 अनप्रॉफिटेबल ट्रेड्स। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ए क्रॉसओवर। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक था, 3 अनप्रॉफिटेबल ट्रेड था जिसे आप इग्नोर कर पाए। आपको लग रहा था ट्रेंड होगा क्योंकि ईएमआई करंट प्राइस से ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल मूविंग एवरेज आपको बोल रहा था कि भाई ले ले भाई, ले ले भाई, ले ले भाई, लेकिन नहीं लेना चाहिए ना, देखना चाहिए। तो मोमेंटम बाद में मिला है। जैसे अगर मैं आपको रिसेंट ट्रेंड में किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बताऊं, चलो थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा देखने से पहले थोड़ा और पॉइंट को कवर करते, देख सेकंड, एक ही बार में देखेंगे, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर, इसको क्या देख, इसको क्या देखना चाहिए देख लेते हैं। The biggest advantage of crossover system, a trader can use any combination to create a MA crossover. MA माने moving average crossover. Some of the popular combinations for a swing trader, ठीक है, swing trader माने जो बेसिकली आज बाय करते हैं कल बेचते हैं। इंट्राडे को स्विंग नॉर्मली नहीं बोलते, इंट्राडे के अंदर भी एक स्विंग होता है, ठीक है, विद इन इंट्राडे भी एक स्विंग होता है कि आप सुबह लेते हो शाम को बेचते हो, उसमें भी एक स्विंग देखने को मिलता है। स्विंग माने जब मैटर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा घुमा के चल रहा है, तब उसको स्विंग बोलते हैं ना। हल्का सा घूमेगा हम प्रॉफिट करेंगे, या तो इधर या तो इधर। अरे क्रिकेट से ही तो लिया गया वर्ड को, स्विंग। क्रिकेट में स्विंग क्या होता है, बॉल सीधा जा रहा था, ठीक है, सीधा जाके हल्का मूवमेंट करेगा और वही हल्का मूवमेंट बैट्समैन को बीट करेगा। और स्टॉक मार्केट में ये स्विंग क्या है, ये आपको बीट भी कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट भी दे सकते हैं। सीधा जाते जाते किसी एक तरह पे उसको घूमना पड़ेगा, ठीक है। माने अब पॉइंट है कि भाई आप उसको किस तरह से देखो, आप कौन, आप बैट्समैन, स्टॉक मार्केट बॉलर है, ठीक बोल रहा हूँ ना सर। इन्वेस्टर इज लाइक अ बैट्समैन एंड मार्केट इज लाइक अ बॉलर। तो एज ए बैट्समैन मार्केट आपको बॉल फेंके जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई देखो मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ। फिर इस तरह से चलते 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 स्ट्रेट आ रहा था, फिर अचानक से एक आउट स्विंग, अचानक से एक इन स्विंग, इधर देख ठीक है, इधर देख। अब जब इन स्विंग हुआ माने तुम सेल के बारे में, तुमको एक्चुअली उसको ना अवॉइड करना चाहिए था एज ए बैट्समैन, या फिर तुमको डिफरेंट तरीके से खेलना चाहिए था, सिंगल निकालना चाहिए था। और मानो आउट स्विंग है तो तुमको प्रिपेयर रहना चाहिए कि भाई नहीं मार्केट अपर जाएगा, नहीं मार्केट बेयरिश जाएगा, नहीं मार्केट बुलिश जाएगा। तो जो पिच को जितना अच्छे से पढ़ पाएगा वही रन बना पाएगा। मार्केट इज अ पिच, ठीक है। ये जो एक एक सिग्नल जो है ये पोलर है, ठीक है। आप कौन हो, बैट्समैन हो, ट्रेडर क्या है, बैट्समैन है। अब बैट्समैन जैसे पिच को पढ़ पाएगा उस तरह से वो अपना डिसीजन ले पाएगा, वेरी सिंपल। लेकिन ये सिंपल चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे डिटेल्स में पढ़ने का फायदा और शॉर्टकट में पढ़ने का फायदा में एक फर्क दिखाता हूँ। क्रिकेट में जब हम लोग खेलते थे, कोच हम लोग को स्टार्टिंग में नॉर्मल लोग बोलते थे ना भाई बॉल देख के खेल। कुछ लोग क्या करते नॉर्मल भी किसी को या ऑन मग की मैच देखे खेल, अरे बॉल देख के खेलना चाहिए। लेकिन एक डिटेल्स कॉन्सेप्ट होता है, डिटेल्स माने बॉलर का हाथ से लेके, ठीक है, बॉलर का जब हाथ में बॉल कहाँ है, किस तरह से बॉल वो ग्रिप कर रहा है, वहां से लेके बॉल का थ्रोइंग मूवमेंट, ठीक है, फिर बॉल गिरने के बाद पिचिंग का कहाँ पिच कर रहा है, फिर बॉल जब तुम्हारे आंखों के सामने से जा रहा है उससे भी देखो इसको। हाँ क्यों, क्योंकि इस पे तुमको समझ में आएगा। देखो सर मैं यहाँ पर क्रिकेट नहीं सिखा रहा हूँ, दैट इज नॉट माई जॉब यार। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बोलता है ना कि पूरा देखो, बॉलिंग हैंड से लेके उसका उसका रनिंग पुल लेके एकदम बॉल कीपर के हाथ तक जाने तक पूरा देखो। इसको देखने से क्या फायदा कि तुम ओवरऑल मूवमेंट के बारे में एक पूरा आइडिया कर पाओ, और उसके बाद तुम्हारा जो बैटिंग है वो डेवलप करेगा। सिमिलरली मार्केट में भी तुम सेम टू सेम देखो, पूरा देखो पूरा देखो मार्केट को, कुछ छोड़ो, कुछ अपॉर्चुनिटी छोड़ो, जानबूझ के छोड़ो। क्यों छोड़ना है, क्योंकि थोड़ा छोड़ोगे तो उसका एटीट्यूड पता लग जाएगा, फिर आप सही मौका आने पे एक्चुअल में खेल दोगे, ठीक है। देखो सर अब आप बोलोगे सर क्रिकेट को जबरदस्ती घुसा रहे हो, सर नहीं जबरदस्ती नहीं है सर। देखो 9 डे ईएमए एंड 21 डेज ईएमए शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, हाँ कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब 9 दिन का ये ईएमए ले लो,
फ्यू ट्रेडिंग फ्यू ट्रेडिंग सेशंस मैंने एक दिन 2 दिन के लिए, ठीक है, आज लेना कल बेचना, या फिर आज लेना 2 दिन बाद बेचना तो भी चलेगा। 25 एंड 50 का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो अप टू फ्यू वीक्स। नहीं, ये डिपेंड करेगा जिसको जो ठीक लगता है, ठीक है। अमलेंद्र को ये हफ्ता वाला चीज ज्यादा पसंद आता है ठीक है, तो अगर आपको फ्यू वीक्स तक होल्ड करना है, लाइक दिस वीक आप परचेस कर रहे हो, नेक्स्ट वीक आप सेल करने के बारे में टारगेट कर रहे हो, तो आप 25-50 डे का यूज करना, ये एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा मंथली लेवल में जाना है, इस मंथ में लेके नेक्स्ट मंथ में सेल करना, या फिर विद इन 1 मंथ आज खरीद के मंथ के एंड में सेल करना, 50 एंड 100 डे, और ठीक है, और अगर आप 100 एंड 200 डे ये में यूज करते हो, तो ये बेसिकली आपको ना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देगा लॉन्ग टर्म, 6 मंथ 7 मंथ 1 ईयर तक आप इसका समझ सकते हो। सम ऑफ देम कैन इवन लास्ट फॉर ओवर अ ईयर, और कभी कभी 1 साल से ज्यादा तक भी आप होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन ऑन दैट टाइम आप 100 डे एंड 200 डे का ईएमआई यूज करें। रिमेंबर द टाइम फ्रेम, ये जो टाइम फ्रेम मैं आपको अभी बताया, ये टाइम फ्रेम फुल्ली डिपेंड करता है द लेसर ऑफ द ट्रेडर, the lesser the number of trading signal, ठीक है, the longer the time frame, the lesser the number of trading signal। जितना टाइम फ्रेम ज्यादा होगा, सिग्नल उतना कम हो जाएगा, सिग्नल उतना कम हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक 25 एंड 50 का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, 25 एंड 50 का एग्जांपल, द ट्रेडिंग सिग्नल क्वालिफाई अंडर द क्रॉसओवर, जस्ट वॉच वेरी माइन्यूटली। देखिए सर, ये देखिए कहाँ कहाँ आपको मौका बना रहा है, हिजीबिजी होगा देखने में, क्योंकि जब तक हिजीबिजी नहीं होगा हम इतना सारा डेटा कैसे करेंगे, कंसोलिडेट तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको इसको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, बट उससे पहले आप यहाँ पर एक बार देख लो तो आपको लाइव मार्केट में भी इजी लगेगा। जस्ट वॉच केयरफुली, ब्लैक लाइन जो है वो 50 है, ठीक है, 50 डीएम है, और पिंक लाइन जो है वो 100 डीएम है। तो मार्केट आपको क्या सजेस्ट करता है कि जब जब 50 डे ईएमए 100 डे के ऊपर रहेगा तब आपको बाई करना चाहिए। तो लुक एट दिस, ये देखो इस पॉइंट में 50 डे 100 डे के ऊपर है, देखो ब्लैक लाइन इज ग्रेटर देन पिंक लाइन, तो यहाँ पर एक बाई बन रहा है। अच्छा, जिस पॉइंट में ब्लैक नीचे चला गया, देखो ये देखो क्रॉस कर रहा है ना, क्रॉसिंग को देखो बस, ठीक है, जिस पॉइंट में क्रॉस कर रहे हैं उस पॉइंट पे ब्लैक लाइन नीचे आ गया, पिंक ऊपर चला गया, सेल जोन बना रहे हैं सर। ये देखो यहाँ पे देखो, देख रहे सर, कैंडल भी देखो, कैंडल भी आपको कैंडल भी मिल जाएगा, आपको आपको कैंडल के बारे में सोचना ही नहीं है, कैंडल ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। अगेन ये देखो सर, अगेन ब्लैक लाइन ऊपर चला जा रहा है, पिंक नीचे आ जा रहा है, देखो बुलिश कैंडल बन रहा है सर, सर बुलिश कैंडल। अगेन फिर से देखो, ये देखो सेल जोन क्रिएट कर रहा है, देखो कितना लंबा बियरिश लाल कैंडल। अगेन देखो फिर से ब्लैक कैंडल ऊपर, रेड कैंडल, पिंक कैंडल नीचे, अगेन बाइंग जोन बना रहा है। अब इसी चीज को थोड़ा सा लाइव मार्केट में ड्रॉ करा के दिखाते हैं आपको। कोई भी एक रिसेंट ट्रेंड लिया मार्केट, साइडवेज रहते रहते, साइडवेज चल रहा था और अचानक से एक मूवमेंट आया, कोई एक शेयर का नाम बताओ। नहीं, लास्ट कुछ दिनों से वो साइडवेज चल रहा था और रिसेंटली मार्केट में उसको ग्रोथ मिला। हाँ, ट्यूब 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 TUBE, पॉपुलर अच्छा बोल ना क्यों ऐसे ट्यूब, इन्वेस्ट INVEST स्पेलिंग किया है TUB हाँ, इन्वेस्टमेंट तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट शायद से ना, TUBINVESTMENT तो MENTS তো দেখা হবে আলাদা আছে স্পেস আছে টিউবের পরে ইনভেস্টমেন্টের স্পেস দেবো, হ্যাঁ দেখাচ্ছে TII ইন্ডিয়া, না না এটা ইন্ডিয়া দেখা টিউব ইনভেস্টমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, টিউব ইনভেস্টমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, আমি চেঞ্জ করে দিই হ্যাঁ টিউব ইনভেস্টমেন্ট দিতে হবে টিউব ইনভেস্টমেন্ট TI ইন্ডিয়াই দেখাচ্ছে আমাকে, হ্যাঁ টিউব ইনভেস্টমেন্ট হবে TII ইন্ডিয়া দেখাচ্ছে আমাকে, ঠিক আছে এইটা তাই তো। এখন ফলিং আছে अच्छा मैं इसको ना काटता हूँ सर यहाँ से। अब क्या करूंगा सर, इसमें इंडिकेटर में जाऊंगा, फिर यहाँ पर मैं क्रॉस, ये मैं क्रॉस लगाऊंगा, ठीक है, ये मैं क्रॉस, ठीक है,
देख लो सर, देख लो, ये देखिए सर, ये जो रेड लाइन है ये 50 EM है, क्योंकि वो मार्केट के क्लोजिंग में है। रेड लाइन जो है वो 50 EM है। जैसे কতদিনের আমি তো লাগান নি তো 9 আর 26 দেখাচ্ছে এটা, হ্যাঁ বাই ডিফল্ট নিয়েছে। আমি আর কিছু চেঞ্জ করিনি, আমি জাস্ট ছবিটা দেখাচ্ছি। আপনি এখানে গিয়ার আইকনে গিয়ে চেঞ্জ করুন না, কি অসুবিধা আছে। এখানে শর্টে 9 আছে আমরা 25 আর লং এ 26 আছে, ঠিক আছে। এবার আমরা যদি এটাকে 25-50 করে দিচ্ছি, ঠিক আছে, শর্টে 25 নিচ্ছি আর লং এ 50 দিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে। শর্ট 25, লং 50, ওকে। ক্রসে দিয়ে ক্রস হ্যাঁ, ইএমএ ক্রস লিখতে হবে। দুটো ইএমএ লাগানো যাবে হ্যাঁ, দুটো ইএমএ লাগাবো, ওখানে ক্রস ইএমএ করলেও দেখিয়ে দেবে, আপনাকে তো পরিশ্রম করতে হবে না। মানে ওরাই করে দেবে। পুরানো লাগাটা দুটো ইএমএ লাগানো একবার নোটিস লাগান একসাথে লাগান। হ্যাঁ, মানে আপনি এখানে যখন এই যে গিয়ার আইকনে যাচ্ছেন, ইন্ডিকেটরে গিয়ে শুধু আপনি লিখছেন ক্রস ইএমএ, ক্রস ইএমএ করলে ও দুটোই নিয়ে নিচ্ছে। এবারে আপনি জাস্ট সেটিংসে গিয়ে শর্ট শর্ট মানে 50 ডে আর লং মানে যেটা যেটা লং টার্ম, ঠিক আছে। এবারে আপনি এটাকে 100 করুন, 200 করুন, এটাকে 25 করুন, 50 করুন। এবার আপনি স্টাইলটাকেও চেঞ্জ করতে পারেন, কালার চেঞ্জ করে দিবেন। ধরুন আপনি শর্টের কালারটা চেঞ্জ করে অন্য কিছু রাখতে চাইছেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনি চেঞ্জ করুন নিজের মতো, সেটা যে যেটা ভালো পছন্দ করে। ধরুন শর্টটা আমরা ব্ল্যাক করে দিচ্ছি, ঠিক আছে, শর্টটাকে ব্ল্যাক করে দিলাম আর লংটাকে ওটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি। লংটাকে চেঞ্জ করে কি কালার করবো, গ্রিন আছে, চোখে লাগাতে পারো অরেঞ্জ করে দেবো। হ্যাঁ দেখি ডিটেইল কালার এটা ঠিক আছে, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम लोग 50 और 25 यूज करें। अब देखो ये जो ट्यूब इंडिया का जो तुम लोग शेयर बोले, ट्यूब इन्वेस्टमेंट का, इसमें भी अगर तुम लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो आपको क्या देखना है कि ब्लैक लाइन जहां जहां ऊपर होगा, ठीक है, ब्लैक जहां जहां ऊपर होगा हम लोगों को वहां पर बाई करना चाहिए। ये देखो यहाँ पर ब्लैक क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको बाइंग दे रहे हैं। देखो गैप अप ओपनिंग भी दिया है, ठीक है। ऐसे तो उसका कैंडल स्टिक्स का पहचान यहाँ से शुरू हो गया था सर, कैंडल उसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा था। देखो यहाँ पर एक पियर्सिंग पैटर्न स्टार्ट किया था, हाँ पियर्सिंग है ना, 50% कवर किया है सर, ठीक है। ये रिक्स वाला एक दिन নিতে পারে ঠিক আছে, যে রিস্ক টেকার হবে ও এখানে নিয়ে নেবে, উপর থেকে একটা মারু বুঝুক নেই, মারু বুঝুক নেই, সাপোর্ট में भी था। না হলে তো আমরা টার্গেট উপরেটা নিতে পারবো মানে এখানে ওর পরেরটা নিতে হ্যাঁ পরেরটাতে, হ্যাঁ যদি মুভিং এভারেজ দেখে কেউ করে তাহলে সে যেখানটাতে ক্রস করছে ওখানটাতে, আর কেউ যদি তার আগে বুঝতে পারে ক্যান্ডেল স্টিক্সে গ্রোথ আসছে, রিস্ক টেকার থাকে সেখানে নিতে পারে। শেষে হয়ে গেল তারপর দিন বা ওই ক্যান্ডেল সেকেন্ড ক্যান্ডেল रिस्क टेकर कैंडल देख के भी पहचान सकता है, सपोर्ट देख के भी पहचान सकता है। मूविंग एवरेज आपको अनदर कॉन्फिडेंस देगा कि भाई अल्टीमेटली मूविंग एवरेज लाइन भी क्रॉस कर रहा है, ईएमए भी क्रॉस कर रहा है, 50 डे ईएमए 100 डे ईएमए को क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें ग्रोथ है। अच्छा कब तक होल्ड करना चाहिए, जब तक ना ये ब्लैक लाइन ऑरेंज लाइन को वापस नीचे ऊपर से ना कट करे, इन ब्लैक लाइन ऑरेंज लाइन को यानी 100 डे को ऊपर से ना कट करे, ठीक है। तो जिस पॉइंट में ये नीचे कट करने के लिए आएगा उस टाइम पे आप सेल करके निकल। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब आपको मौका সিগন্যাল দিয়েছে অলরেডি প্লাস সাইন গুলো তো ওই সিগন্যালের জন্যই দেওয়া আছে, ঠিক আছে, এইগুলো তো এই জন্যই দিচ্ছে कि এখানটাতে क्रॉस করছে। अच्छा यहाँ पर भी देखिए ये भी सेलिंग जोन बना है, ये पहले का सिचुएशंस के साथ, माने जो पहले लिया था, जैसे यहाँ पर लिया था, ये देखो यहाँ पर लिया था, ठीक है, ये देखो यहाँ पर कैंडल भी देखो मॉर्निंग स्टार वगैरह ऑलमोस्ट डेवलप कर रहा था, यहाँ पर एक हरामी भी क्रिएट किया था, है ना। तो कहीं ना कहीं कैंडल स्टिक्स आपको सपोर्ट देगा ही, मतलब साथ देगा, ऊपर से सपोर्ट जोन भी क्रिएट करेगा। उसके बाद अगर मार्केट में मोमेंटम आता है तो 50 डे ईएमए 100 डे ईएमए को क्रॉस करेगा, और जैसे ही क्रॉस करेगा ऑटोमेटिकली बाइंग जोन क्रिएट करेगा, ক্যান্ডেলস্টিকটা ওর সঙ্গে রিলেটেড বলেই ऑटोमेटिक देखा कैंडल पहले है ওখানে রেড ক্যান্ডেল দেখাবে না বাইট দেখাবে না, অসম্ভব। যদি ক্রস ওভার করে তাহলে রেড ক্যান্ডেল হবেই না। আমি ফুটবল লাগিয়েছি প্রবলেমটা ভুলে গেছি কারা ফর্মুলাটা ঠিক আছে রিলেটেড হ্যাঁ এটা হচ্ছে ক্যান্ডেলস্টিকের সাথে এক্স্যাক্টলি, বোঝা যায় ঠিক আছে। এইটা বোঝা যায় সিমিলারলি যখন সেল করতে হবে তখন সেলের জন্য দেখাবে, কারণ তখন 50 डे ईएमए क्या होगा सर, 50 डे ईएमए
उसको क्रॉस करके नीचे आ जाएगा और 100 के ऊपर चला जाएगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा तो आपको सेलिंग करना है, मतलब शॉर्ट सेलिंग के लिए आप रेडी हो सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं एक शॉर्ट टर्म बताऊं आपको, ऐसे इसके लिए थोड़ा सा इसको कम करना चाहिए, मैंने ईएमए को भी कम करना चाहिए। हाँ, इसको अगर मैं कम भी करूँ तो अभी आपको देखो एक शॉर्टिंग का क्या मौका मिलता है। देखो इसको चेंज करूंगा सर, इनपुट को 9 एंड 21 करता हूँ, ठीक है। शॉर्ट को मैं 9 कर देता हूँ, लॉन्ग को 26 नॉर्मली, अच्छा 21 ही ले लेते हैं चलो, ठीक है। लुक एट सर, शॉर्ट टर्म में कितना मौका देता है देखो, ये देखो सर, यहाँ पर ये सिचुएशन देखो सर, यहाँ पर ये इसको ये ऊपर ही है ना सर, मैंने बेसिकली दिस इज द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, है ना। ऐसे ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ क्रिएट हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर एक बियरिश इंगल्फिंग क्रिएट किया है ना सर, यही से समझ में आ रहा था। अच्छा साथ में मारुबुजु भी था, देखो बियरिश इंगल्फिंग विद मारुबुजु, है ना, मैंने सिंगल में देखो तो ये मारुबुजु है ऑलमोस्ट, ঠিক আছে না, তারপর এটা খুব একটা মারুবুজু হয়নি, বাট বেসিক্যালি এটা একটা বিয়ারিশ ইনগালফিং কেস। তো বিয়ারিশ ইনগালফিং হওয়া মানে আচ্ছা আপ ट्रेंड में बियरिश इंगल्फिंग होता है, बियरिश इंगल्फिंग कहाँ होना है, अप ट्रेंड में होना है। तो बियरिश इंगल्फिंग अप ट्रेंड में होने के बाद मार्केट आपको ऐसे ही मौका दे रहा था कि वो ऐसे ही गिरने वाला है। अच्छा मार्केट आपको वापस सिग्नल दे रहा है कि भाई है मैं और गिरूंगा, क्योंकि मूविंग एवरेज लाइन, क्योंकि मूविंग एवरेज लाइन 50 डे का ईएमए 100 डे का ईएमए को क्रॉस करके नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट और नीचे जाएगा। तो अगर किसी ने बस यहाँ पर मिस कर लिया, अगर किसी का बस यहाँ मिस हो गया तो वो बस यहाँ पकड़ सकता है। डबल कॉन्फिडेंस एकदम, रिस्क टेकर यहीं पर कर देगा, ठीक है। जिसको थोड़ा रिस्क लेना नहीं होगा ही होगा। कैंडलस्टिक जाने ना से क्रॉस का देखবেন যে ক্যান্ডেলস্টিক জানে সে দুটোই দেখবে যে মুভিং এভারেজ বুঝবে যে ক্রসটা ভুল, মানে ক্রসটা ভুল না, ক্রসটা হচ্ছে স্যাঙ্গুইন করবে, ওটা ক্রস বেসিক্যালি ভুল হবে না, না ক্রস স্যাঙ্গুইন করছে তো সেকেন্ড চেক ক্যান্ডেলই তো তোকে প্রথম ইশারাটা দিল যে আমি রাস্তা বদলাও, ক্রস ওভার ট্রেন্ডটাকে আমরা বলবো যেটা কন্টিনিউ, ঠিক আছে। কন্টিনিউশনটা তোকে কনফার্মেশন দেবে কি হ্যাঁ রাস্তা ঠিক আছে, গাড়ি তুমি চালাতে বুঝতে পারলি। কিন্তু ক্যান্ডেল এরকম তৈরি মানে ওর কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি, ও বলতে চাইছে ক্যান্ডেল অনেক সময় ফরমেশন হওয়ার পরও মার্কেট বোঝা যায় না, কিন্তু তুই ক্যান্ডেল আর এভারেজ যখন একসাথে লাগাবি না, ঠিক আছে, তো তখন তুই অটোমেটিক্যালি বুঝতে পারবি কি ক্যান্ডেল ফর্ম করেছে এবং ক্রসওভার সিস্টেমও ফর্ম করেছে, তো তুই অটোমেটিক্যালি সিগন্যাল দেখতে পারবি। মানে আপনাদের 3-4টে জিনিস, ক্যান্ডেল দেখবো, ভলিউম দেখবো, সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স, যেটা বলেছি ধর যে মাঝখানে যদি হয়ে যায়, মানে এখন মার্কেট চলছে বেশ বেশ ফাইন, এই সময় ওই জিনিসটা বেসিক্যালি বলতে গেছে প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি, অনেক সময় ক্যান্ডেল শুধু ক্যান্ডেল মিসলিড করে, মানে দেখা যাচ্ছে কি আমি প্রপার ক্যান্ডেল পাচ্ছি কিন্তু আমি সিগন্যাল মানে মার্কেটে কিছু ট্রেন্ড বুঝতে পারছি না, তো মুভিং এভারেজ আমাকে সেকেন্ডারিতে সেই স্যাঙ্গুইনেসটা দেবে, যেটা কেউ বলছে কি মুভিং এভারেজ ভুল হতে পারে না, ক্যান্ডেল ভুল হতে পারে, মানে বেসিক্যালি অ্যাকচুয়ালি ক্যান্ডেলই প্রথম খেলাটা শুরু করে। এবারে ক্যান্ডেলের খেলা শুরু হওয়ার পর তুই মুভিং এভারেজটা দেখে স্যাঙ্গুইন হলে তুই তোর মানে ট্রেডিং এর এটা বাড়াতে পারবি, ভলিউমটা বাড়াতে পারবি। ধর তুই আগে ভাবছিলি আমি 50টা শেয়ারে করবো, এখন তুই 100টা শেয়ারে ট্রেড নিতে পারবি, বুঝতে পারলি, মানে লট বাড়াতে পারবি। যদি অপশনের অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবি তাহলে তুই লট বাড়াতে পারবি, আগে একটা লটে খেলছি এখন 2টো লটে খেলবি, 3টে লটে খেলবি। ক্যান্ডেল এসটি ক্যান্ডেলেরই ম্যাথমেটিক্সটাকে নিয়ে এখানে করেছে, ক্যান্ডেলের ম্যাথমেটিক্সটাকে নিয়ে এখানে করেছে, মানে ক্যান্ডেল যদি এরকমটা না হতো তাহলে হয়তো সিচুয়েশনটাই হতো। এইটাও দেখ তুই, এই জায়গাটা দেখ, এই জায়গাটা দেখ, এখানটা দেখ, আমি যেটা অ্যাকচুয়ালি দেখে এক্সাইটেড হয়ে গেছিলাম সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা, এখানটাতে একটা ডাউন ট্রেন্ড, এটা আমাদের ঠিক আছে, ডাউন ট্রেন্ডে ফার্স্ট ক্যান্ডেলটা বিয়ারিশ, ঠিক আছে, প্যাটার্ন 1, প্যাটার্ন 2 তে হারামি, ঠিক আছে, ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ক্যান্ডেল। আচ্ছা থার্ডে একটা হ্যামার, থার্ডে একটা হ্যামার, ঠিক আছে, তো সব মিলিয়ে আমার এখানে প্লাস সাপোর্ট, হ্যাঁ প্লাস সাপোর্ট, প্লাস সাপোর্ট আপনি এখানে দিয়েছেন 10 9 লাখ 51 9 আর 10 7 করতে 750। अच्छा देखिए रिस्क टेकर क्या करेगा, रिस्क टेकर इसी पॉइंट में एंट्री कर सकता है, बट अगर सैंग्विन होना है तो मूविंग एवरेज लाइन लगाओ, कंफर्म करो। जैसे देखो रिस्क एवर्स क्या करेगा, वो थर्ड पैटर्न के लिए वेट करेगा। थर्ड पैटर्न में तो हैमर बना है, तो थर्ड पैटर्न कहीं ना कहीं आपको हेल्प नहीं करता, लेकिन वो आपको सोचने को बोले, स्टांस लेने बोले कि भाई होने वाला है, क्योंकि हैमर बना है,
हाँ। डाउन ट्रेंड में हैमर, सपोर्ट में हैमर, कुछ तो होने वाला है, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट फोर्थ मैंने ये वाला पैटर्न आपको सैंग्विन किया, और सैंग्विन करने के साथ साथ आपको एक्चुअली एवरेज लाइन से भी सैंग्विन किया कि भाई मैं क्रॉस करने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ट्रेंड बनाने जा रहा हूँ। अब मार्केट बीच बीच में गिरा भी है, मार्केट बीच बीच में बियरिश भी हुआ है, साइडवेज भी हुआ है, लेकिन आप तब तक होल्ड करो ना जब तक 50 डे का ईएमए क्रॉस ना करता है। यानी कब तक होल्ड करना चाहिए ये आपको बता रहा है ना, जैसे अभी भी होल्डिंग है, अभी भी आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन क्योंकि देखो यहाँ पर भी एक सिचुएशन हुआ है, यहाँ पर देखो ये अगर एक बहुत ही गंदा सा एक कैंडल बना है, ठीक है, लेकिन इसको मैं क्या बोलूंगा सर, इसको बियरिश हरामी बोल सकता हूँ, सॉरी बियरिश इंगल्फिंग बोल सकता हूँ, क्योंकि पैटर्न 1 ग्रीन है एंड पैटर्न 2 रेड है, सॉरी हरामी, बियरिश हरामी, सॉरी इंगल्फिंग नहीं, এত বড় ক্যান্ডেল সেদিন 16% উঠেছিল। ठीक है, बियरिश हरामी क्रिएट किया है, और बियरिश हरामी क्रिएट करने के बाद मार्केट में स्पिनिंग टॉप भी क्रिएट किया, ठीक है, और रिसेंटली एक मारुमुजु भी क्रिएट किया, तो कहीं ना कहीं इसका ट्रेंड मूवमेंट डाउन डिसेंडिंग है, तो इस मूवमेंट में सेल प्रेशर ही ज्यादा होने का चांसेस है। लेकिन हाँ सैंग्विन अगर किसी को नहीं लग रहा है कि नहीं मुझे और थोड़ा सा देखना है, तो वो प्रॉफिट जरूर थोड़ा लॉस कर सकता है, एकदम लॉस नहीं होगा क्योंकि उसने बाई तो यहाँ पर किया था, ठीक है, लेकिन वो कब तक वेट करेगा, जब तक ये लाइन इसको क्रॉस करके इधर नहीं आता, तब तक आप होल्ड कर सकते, तब तक आप होल्ड कर सकते। मैंने ये जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कब पकड़े कब छोड़े, এটার জন্যই এই চেক পয়েন্টটা লাগা চেক কাউন্ট, যেমন রেজিস্ট্যান্স লেভেলটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, ক্যান্ডেলস্টিক দিয়েছিলাম এটা হচ্ছিল না বলে খুবই অসুবিধা হলো। ডবল কনফার্মেশন একটু সময় লাগবে তো যে কোনো জিনিস আস্তে আস্তে আপনি কেন বুঝে একটা সেভেন লাগান, আপনি যেটা বলতে চাইছেন না এটা একটা ইয়ের বের দিচ্ছেন, এটা না কি বের মানে ডেতে কিনা দেখতে পাচ্ছেন, আচ্ছা আপনি 7 লাগান তাহলে আপনি ওইটা শর্টটা 7 আর লংটা 21 আচ্ছা সেটাই এইটা তাও হয়নি লাগিয়ে হ্যাঁ লাগিয়েছি লাগিয়ে তাহলে হয়নি, আমি যদি ওটা দিলে এক্স্যাক্টলি এইটা নিচে আসছে কিন্তু যেটা আপনি হারামি পেয়েছেন হ্যাঁ রোজ সবটা এক ওর নিচে একদম আপনি কোথায় যেটা হারামিতেই খুব বেশি লোক নয় 21 হ্যাঁ এগুলোই পপুলার 9 21 7 21 কোনগুলোই চলে এগুলো কি করে কিন্তু লোকজন আছে মার্কেটে পাবলিশন কমিউনিকেশন করে ও একটা এরকম এর মতো ফর্মুলা বানিয়ে নেয় না ও কি করে ওটাকে 9 এটাকে যদি 7 করে 9 কে 7 করলে তো আর এইটাকে সেই হিসাবে করে দেয় হ্যাঁ এগুলোকে 20 18 কিছু একটা করে এরকম করে আপনি বারবার শুনে দেখলে এই ক্যান্ডেলটা আছে আপনি যেটা ভাবছেন ক্যান্ডেল স্টিকের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তাহলে হচ্ছে অ্যাকুরেসিটা হবে আমরা বুঝতে পারি না 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 মানে দেখুন মার্কেট একটা নিজের ম্যাথমেটিক্সে চলে, কিন্তু তাহলে কি ট্রেডার নিজের ম্যাথ লাগাতে পারেন? কালকে আপনার ম্যাথ যদি হিট করে যায় আর আপনি কোটিপতি হয়ে যান সেদিন থেকে আপনার ফর্মুলাটাই লোক ইউজ করা শুরু করবে। তো মার্কেটে এরকম কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল কিন্তু নেই, ঠিক আছে, এটা একটা ট্রেন্ড, ঠিক আছে। কালকেই যেমন ধর এতদিন যেমন আমি খুব সিম্পল বলছি, আবার ক্রিকেট মনে পড়ছে, ক্রিকেটে এক সময় যেমন সুনীল গাভাস্কর আর বীরেন্দ্র সেহবাগ একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছে कि हमारे जमाने में बैट्समैन देख के खेलता है वीरेंद्र सहवाग बोलते हैं कि हमारे जमाने में बैट्समैन ठोक के खेलता है, ठीक है। अब कोई देख के खेलता था, अभी ठोक के खेलता है, और आजकल तो क्या खेलता है इसको पता नहीं तो ट्रेंड बदलता है, ऐसा बात नहीं है, ट्रेंड बिल्कुल बदलता है। यार এখানে তো অনেক বোঝা যায় যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা আছে এটা তো আপনি লাগালে লাগাবেন ক্যান্ডেলস থেকে যদি আপনি ভালো করে বুঝতে পারেন তাহলে আপনি রিস্ক টেকারটা ওখানেই লাগান, রিস্ক টেকার হলে ওখানেই লাগান, আমি তো ওটাই প্রেফার করব। আমি পার্সোনালি যদি আমায় জিজ্ঞেস করেন আমি ক্যান্ডেল বুঝতে পারি, ঠিক আছে, আর ক্যান্ডেল বুঝতে পারি বলে আমি কিন্তু রিস্কি গুলোই বেশি নিই, একবার ভুল আমার থেকেও হয়, কিন্তু আমি বেসিক্যালি বলতে চাইছি কি যদি তুমি যদি ক্যান্ডেল কে খুব ভালো বোঝো, স্টকের মেন্টালিটি এটা যদি বোঝো, আমার মানে মানে 9 21 এর সঙ্গে 10 22 কম্বিনেশন প্যারামিটার আমার দরকার নেই, আমার 9 21 থাকলো আর আমি এখানে ক্যান্ডেলটাকে বুঝতে পারলাম, হ্যাঁ, তাহলে আমাকে বেটার প্রফিটেবিলিটিতে থাকবে। যেমন আমি রিসেন্টলি যখন আমি আদানি উইলমারে তাদেরকে বললাম ট্রেড নেই, রিসেন্টলি বললাম না, তো আদানি উইলমারে দেখে কেন বললাম, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি সাপোর্টে আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি কি প্রপারলি একটা হারামি ক্রিয়েট করেছে, এত বলা যায় না মানে ওই সবগুলো উঠে গিয়েছিল সেদিন যে থেমে গেছে, হ্যাঁ থেমে থেমে গেছে মানে নামার একটা এরিয়া মানে যে পুরো মারুকুজি হলো বুঝতে পেরেছেন আদানি উইলবার আপনি দেখুন সে হচ্ছে ফুল মারুকুজি
মানে তার একটু চুল নেই কোনো তার উইক নেই তারপরে মানে কোনো ম্যাথমেটিক্স কাজ देखो হ্যাঁ এই যে দেখুন পুরো মার্কেট अदानी बिरला এই যে crossing মাথা থেকে দেখে আমরা বলছি যে রাতে কথা বলতে দেখ মার্কেট কি হয়েছে কালকে হচ্ছে আরো উঠবে ये देखिए सर अदानी विल्मर अच्छा ये देखो ये এখানে একটা ইংরেজি हमारे इसमें अच्छा ये 7 दिन माने कौन सा कलर है शॉर्ट कौन सा कलर चल रहा है शॉर्ट माने ब्लैक তাই তো শর্ট মানে ব্ল্যাক আর লং মানে অরেঞ্জ ভুলিস না এটা শর্ট মানে ব্ল্যাক আর তার মানে শর্ট এটা মানে 50 ডে এমএ অনেক দিন ধরে চলবে। ये देखो बेसिकली मेन बाइंग क्रिएशन एज पर मूविंग एवरेज यहाँ पर है এই ডাউন ট্রেন্ড এখন ডাউন ট্রেন্ডেই আছে ठीक है एज पर मूविंग एवरेज दिस इज द बाइंग एरिया करंट ठीक है लेकिन हम लोग तो यहीं पर बात कर लिए थे सर क्लास में क्योंकि हम लोग तो यहीं पर 290 में बात कर रहे थे लेकिन करेक्ट मैं तो बोला था आप लोग कि देखना इसमें विल्मर यहाँ से रिवर्स करे এখানে একটা বেয়ারলিশ ওই বুলিশ ठीक है क्योंकि ट्रेंड पूरा एकदम प्रायर ट्रेंड था फिर यहाँ पर एक हरामी बना था ये वाला पूरा का पूरा हरामी बना था तो मुझे तो यहीं पर समझ में आ गया था एग्जैक्टली ये बाई करना है यहीं पर देखो एकदम पक्का बना रहा है अब देखो यहाँ पर खरीदने के बाद अब तुमको एक मानो ये नॉर्मली मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मंथली या फिर वीकली बेसिस में आप जा रहे हो तो ये ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है 15 तारीख से लेके हार्डली आज 30 तारीख है 2 हफ्ता का बात है तो 2 हफ्ता में 290 से अभी 340 अच्छा अगर किसी को सेल करना था वो शायद सेल कर दिया लेकिन क्योंकि अदा नहीं है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि विल्मर के बारे में थोड़ा खबर मार्केट में स्प्रेड हो रहा है लेकिन कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है कुछ ऐसे ऐसे सोर्स से खबर आ रहा है ना वो सोर्स एक्चुअली ऑथेंटिक कंपनी नहीं है मैं देख रहा था जो न्यूज चैनल्स ये सब स्प्रेड कर रहे हैं दे आर नॉट ऑथेंटिक न्यूज चैनल्स এখন তারা ইভিনিং স্টার্ট করে দিবে। ठीक है आजकल तो कोई भी न्यूज बना रहा है सर एक ब्लॉग बना के নিউজ হবে না নিউজ নেওয়া যায় নিউজ হচ্ছে যে নিউজ যেটা হয়ে গেছে সেটাকে আপনি বুঝতে হবে এটা হয়ে গেছে মানে আজকে এটা হয়ে গেছে নিউজ একদম দেখা যায় না ठीक है अब नहीं न्यूज को देख के कुछ लोग ये जो স্টেটমেন্ট এই গ্লোবাল নিউজ শর্টস কি করে আমাদের এখানে বাক স্বাধীনতা আছে তো? সংবিধান রাইট দিচ্ছে ভুলভাল নিউজ না এটা বলেন भूल देख अगर तभी होता है ফ্রিডম অফ जैसे देख एनडीटीवी चलो अब कंट्रोवर्शियल होता है एनडीटीवी ठीक है एनडीटीवी अदानी के पीछे लगता था आज अदानी एनडीटीवी को खरीद लिया बस खत्म एनडीटीवी हमेशा एंटी बीजेपी बात करता था एंटी अदानी बात करता था चलो কে না মানে রেগুলেট ছিল তাহলে এটি সুন্দর বলেছে কেন কি আর তো আরে বাবাটা কাছে যে সুইচটা দিতে শোনার মতো কান থেকে অফিসে দিয়ে যাবে এটা বিষয় কি বলি আগে বিজনেস ওরা ভালোই করছে বিজনেস में ও ডেটা দিয়ে বলেছে যে আগে ল্যান্ড ব্যাংকের ডেটা ছিল না ইন্ডিয়া জিডিপি মানে এখন যে ইন্ডিয়া যে জিডিপি সেগুলো দেখলে না রিলায়েন্সে ম্যাক্সিমাম যারা ওয়ার্কার আছে তারা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বিলং করে কলকাতা না ও শুধু বলতে কোথাও গেলে একটু পাঠতে পারবি না মানে মোটা দিন পুরো আলফা করতে না बिजनेस माने क्या अल्फा ডেটা দিয়ে বলেছে बिजनेस पॉलिसी ডেটা দিয়ে বলেছে এই ডেটা ছিল আপনার ইন্ডিয়া জিডিপি এটা বেঙ্গলের জিডিপি এটা বেঙ্গলে ল্যান্ড ব্যাংক ছিল না এটা হয়েছে তারপরে ওয়ান উইন্ডো সলিউশন আছে বিজনেসের জন্য তাই ওখানে কিছু করে অ্যাডভাইস করতে চাই ওয়ান হান্ড্রেড সলিউশন হয়েছে কিন্তু ওটা বিজনেস অফার হচ্ছে अच्छा तो बेसिकली आई होप कि मूविंग एवरेज रिलेटेड मैटर अच्छा मूविंग एवरेज है ना और भी कुछ आपको ना इंडिकेटर मिलेगा ठीक है आप उसको भी चाहो तो आप लोग यूज कर सकते हो मैं जैसे यहाँ पर कुछ है सिमिलर काइंड ऑफ मुझे इतना जरूरत ठीक है ईएमए क्रॉस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ठीक है डबल ईएमए भी कोई लगाता है जैसे आप बोल रहे थे ना कि मैं दो ईएमए आप लगाइए ट्रिपल ईएमए भी कोई लगाता है ইন্টারডে করলেও 921 লাগাতে পারো আর ওখানে ক্যান্ডেল স্টিক কি দেখো 3-5 মিনিট इंट्राडे করলে 5 মিনিট দেখুন 15 মিনিট দেখুন আধ ঘন্টা দেখুন না না ইন্ট্রাডে মানে কি ইন্ট্রাডে মানে তো এরকম নয় কি আপনি যারা 5-5 মিনিটে খেলছে তারা স্কাল্পার
তারা scalper। ঠিক আছে, তারা স্ক্যাল্পার, তাদেরকে নিয়ে আমি ভাবছি না। আমি বলতে চাইছি ধরুন আপনি সকালবেলা 10টা 10:30টায় পজিশন নিচ্ছেন, আপনি 2:30টে 3টাতে পজিশন ক্লোজ করতে চাইছেন, তাহলে আপনি আধ ঘন্টার ক্যান্ডেল নিলেও তো আপনার কাজ দেবে। হ্যাঁ, 15 বলছে 15টা কি মানে দুটি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে বাজারে যে আমরা কিন্তু কনফার্ম করি। মানে আপনি ধরুন ইকোনমিক্স পড়েছেন, আপনি এই করছেন না, বাজারে তো এরকম চলা করছেন, এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড 9 25 50। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো তো মার্কেট প্র্যাকটিসে পাওয়া গেছে। হ্যাঁ মানে এটা যে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। আমি সের কথাই বলছি, স্ট্যান্ডার্ডে মার্কেট প্র্যাকটিস থেকে যেগুলো পাওয়া গেছে সেগুলোই তো বইতে পড়ানো হয়। মানে এখনো পর্যন্ত যা যা ট্রেন্ড ফলো হয়েছে সেগুলোই আমরা বইতে পড়ি, আরো নতুন নতুন জিনিস আসছে সেগুলো আরো ফার্দার এডিশন হবে। এবারে এখনো পর্যন্ত যা যা পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে কি 5 মিনিট থেকে শুরু করে ম্যাক্সিমাম আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা পর্যন্ত ইন্টারডেটা ফলো করতে পারে। ইন্টারনেটে মানে ইমেটা ফলো করা যাবে? হ্যাঁ, কেন ফলো করে বল না, মানে না কেন অসুবিধা কি আছে? তুই ইন্টারডে ট্রেডিং নিবি, সাপোজ ধর আমি একটা 15 মিনিটের বা 5 মিনিটের চার্ট, আপনি কি হাই ঠিক আছে, এই দেখ আমি যদি আদানি উইলমারই দেখি, আচ্ছা আদানি উইলমার ভালো কিছু একটা, ভালো কিছু একটা, ভালো কিছু একটা ট্রেড বল। অ্যালেন্টিক ফার্ম, অ্যালেন অ্যালেন্টিক ফার্ম কত হ্যাঁ 9% কাছে ঠিক আছে ওই শেয়ার অ্যালেন টেকনোলজি, অ্যালেন্টিক ফার্ম এ এ এল ই এ এল ই এ এল ই হ্যাঁ এম বিআইসি দেখা যাচ্ছে না ফিক্সড এই আছে এ এল ই এন এম বিআইসি এম না এম হ্যাঁ দিয়ে বিআইসি বিআইসি এলটিডি হ্যাঁ एलेम्बिक। अच्छा एलेम्बिक, जैसे देख एलेम्बिक में ब्लैक मनी 50 डे, ठीक है, तो ये अभी भी होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं 5 मिनट का चार्ट में, এখানে সাপোর্ট ছিল ठीक है। अच्छा देख, कल जो लोग कल मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे किया था, फिर आज सुबह का अगर मैं देखो, सुबह मार्केट जब स्टार्ट हुआ तो ये बाइंग जोन में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अगर किसी ने 5 मिनट तक भी होल्ड किया तो जस्ट लो किया 9:25, ठीक है, 9:25 में मार्केट का सिचुएशन यहाँ पर है, फिर 9:30 में मार्केट नीचे गिरा। लेकिन अगर तुम, चलो इस पे एक काम करते हैं, इसको न्यूली दिखाते हैं, इंडिकेटर एंड क्रॉसिंग, लुक एट द सिचुएशंस। देख लेता हूँ सर, शॉर्ट मैंने ये लो ऑरेंज वाला, ठीक है, और लॉन्ग मैंने ग्रीन वाला, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो शॉर्ट मैंने ऑरेंज और लॉन्ग मैंने ग्रीन। 9:26 9 दिन पर 9 और 26 लिया गया है। अच्छा, इधर इसको कम करके अगर मैं 9 और 21 भी कर सकता हूँ, 9 है 20, ये देखो सर, देखो तो लॉन्ग जो है माने बेसिकली शॉर्ट जो है वो अभी भी अपर लेवल में ही है, तो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा गिरने वाला चांस कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको ऐसा कुछ मौका भी नहीं बना रहा है। मौका तो यहाँ बना था, और आज अभी भी ऐसा कोई मौका देखो, कोई प्लस सिग्नल आपको ऐसा कुछ दिया नहीं है कि आप यहाँ पर बाई करो, मैंने प्रॉपरली ऐसा कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा मिनट को चेंज करके मैं 10 मिनट 15 मिनट करता हूँ, 15 मिनट में आपको सिचुएशन दिखेगा। लुक एट, এটাই হচ্ছে মানে যে আমরা দেখছি না অ্যাকুরেটলি যেটা বুঝতে পারছেন, তখন আপনাকে আমি ফ্রেম সেট নিয়ে নিতে হবে, আমি 15 মিনিটেই দেখবো এক্সাক্ট। আমি সেই জন্যই তো কেন এলাম, মানে আমরা তো এটা দেখিয়ে নিই এটা এই আমি সিনারি। তো র্যান্ডম পিক করছি, ঠিক আছে, দেখুন আমরা নরমালি সুইং ট্রেডিং এর উপরে ফেস করছি। এবারে যদি কেউ বলবে আমি ইন্ট্রাডে ট্রেড, তাহলে সে কি করবে? তাহলে সে বেসিক্যালি যেমন ধরুন আজকে 30 তারিখ, 30 তারিখে আজকে যখন মার্কেট ওপেন হয়েছে, যখন এই যে এইখানটাতে অ্যাকচুয়ালি একটা সিগন্যাল আমাকে দিয়েছে, তার মানে বেসিক্যালি আজকে যখন মার্কেট ওপেন হচ্ছে এই জায়গাটাতে, তো এই জায়গাটাতেও আমার এইখানটাতে একটা পয়েন্ট ক্রিয়েট হয়েছে মার্কেট ওপেনের পরে। এইখানে একটা ইয়ে হয়েছে সারানো তৈরি দেখুন এই যে এটা সারানো এটা 50, এটা শর্ট না, এটা 9 EM এ আছে অরেঞ্জটা, তাহলে 9 EM এ যদি উপরে থাকে তাহলে আমি বাই করব না, এখানেই ব্রাইটটা করতে হতো আজ, এইখানটাতেই বাইটা করতে। যখন এই উঠছে তখনই বাইটা করতে হতো ওটা আগের দিন আগের দিনের না আজকে 30 তারিখ লাইভ হবে। আজকে মানে বেসিক্যালি 84 টাকা সামথিং এ, মানে কেউ যদি এটার জন্য ওয়েট করে থাকে ক্যান্ডেল ফর্ম হবে, তাহলে সে লস হয়ে গেল তার বিরাট। তাহলে সে পাবে।
তার মানে এটা হয়ে গেছে, মানে এটা তো ফার্স্ট শুরু হয়েছে তো, হ্যাঁ। ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ক্যান্ডেলে আপনাকে করতে হবে, মানে তিনটে আপনি যদি 5 ঠিক যে পয়েন্টটাতে আমার শুধু যদি মুভিং এভারেজ দেখি, ঠিক যে পয়েন্টটাতে মুভিং এভারেজ আমার ক্রস করছে সেই জায়গাটাতে কনফার্মেশন আমি তো 1 মিনিট 2 মিনিট তখন ছোট ক্যান্ডেল শর্ট মিনিটে আমি তো এত সময় পাবো না। 5 মিনিটেও করতে পারেন, তিনটে 5 মিনিটের ক্যান্ডেলে পাঁচ দুটো 5 তিনটে 5 মিনিট করুন তো স্যার, এটাকে পার মিনিট করুন, 1 2 3 শুরু হয়ে এখানে এখানে শুরু হয়েছে এই যে এটা এই এটা এটা এইটা কত সেকেন্ড, এই থার্ড, ঠিকই আছে স্যার, হ্যাঁ তার মানে ঠিকই আছে, 5 মিনিটেই আপনাকে 5 মিনিটেই 5 মিনিটই 5 মিনিট মানে ঠিক ওইখানটা নিয়ে ক্রস করেছে 5 8 মিনিটে মিনিটে এ নিতে হবে, এইখানটাতে ক্রস করেছে এই তো এখানে প্লাস সাইন দিচ্ছে এই তো ওই তো এই তো ভাই ওইখানে যদি তুই এন্ট্রি করতিস, এইটা তো বেশি করতে পারবি না, এটা সিঙ্গেল স্টকে আমরা যে শিখলাম, একটা ছোট স্টকে লাগিয়ে 100-200 টাকা হলে তোর নিজের কি কনফিডেন্স পেকে, আমি তো সেই জন্যই করতে বলি। তার মানে স্যার 5 মিনিটের ইয়ে মিস করবো টাইম ফ্রেম। 5 करो 15 करो जैसे तुम टाइम फ्रेम दिमाग में रखोगे वैसा करो क्या दिक्कत है? তারপর কার যদি ইচ্ছা হয় এখানে বেরিয়ে গেলে হ্যাঁ এইখানে তাহলে আমরা মিনিমাম টার্গেট সেট করে টার্গেট সেট করে বেরোতে পারে যদি আপনার মনে হচ্ছে কি এই যে এত বড় ক্যান্ডেল হয়ে গেছে এখানে বেরিয়ে যাও। আপনি সাপোর্ট নিজের একটা শর্ট টার্ম সাপোর্ট শর্ট টার্মে তো এত লম্বা সময় পাবি না যদি দেখিস কি আমার টার্গেট ফিক্স হয়ে গেছে বেরিয়ে যাও কেউ এইখানে উঠে গেলে তারপরে এতটা লাল হয়েছে সে আর থাকবে না, 21 করেই ভালো 9-26 না 9-21 9-21 9-26 ইটস ওকে তুই তবে যত শর্ট ফ্রেমে যাবি তত বেশি নয়, তত তো শর্ট টার্মে সুবিধা হবে। তবে একটা গ্যাপও মেনটেন করবি মানে 21টাকে তা বলে আবার 10 করে দিস না তাহলে তো বেশি নয়। ঠিক আছে তাহলে তো পুরো নয়েজ পাবি এটা কিছু আমরা পাবি না। জানলাম স্যার, 9-21 যে 7-7 Standard। নয়, 9-21 হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড, এটা আমরা দেখে নিলাম। তার সাথে ক্যান্ডেল দেখে নেবো, ভলিউম দেখে নেবো। ओके ठीक है सर फिर आज का डिस्कशन इतना ही रखते हैं कल के क्लास में हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में आरएसआई वगैरह सीखेंगे ठीक है और मजा आएगा सर ठीक है ওটা আরেকটা another important part ক্যান্ডেল স্টিক সাপোর্ট এ হয়ে গেল, আর ঠিক আর এসে একটা बाय फिर सर टाटा ওভারবট আর ইয়ে হুম ওভার আর